जय हिंद सबों को. Good morning all the students. Hope you are understanding for these slides. I am trying my best to make you understand and good. All of you are asking several questions also. So you are free to ask. आप कोई भी डाउट हो तो फ्री है आस्क करने के लिए. एक सजेशन और है, ज़्यादा नेट सर्फिंग मत करिए. किसी एक सोर्स पे डिपेंड होना ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन्स इन योर माइंड. सो बी फोकस्ड ऑन NCERT slides or any get the information from single source. Okay, and if you have doubt then ask me. In this slide we are going to start menstrual cycle. इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने oogenesis के बारे में डिस्कस किया था कि ओगोनियम कैसे प्राइमरी oocyte फिर सेकेंडरी oocyte बन रहा है इनसाइड प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स. एंड इनसाइड ग्राफियन फॉलिकल्स secondary oocyte is released and the process is called as ovulation. See, in primates female, the process of this ovulation runs along with the other changes and other phenomenon in their changes in their body also. Three events, that is hormonal secretion, uterine events, means what is going on in their uterus during this ovulatory period, and ovulation, and what is going inside their ovary, means how the follicles are being developed. ये सारे फिनोमिनान को रिलेटेड हैं और ये एक साइकिल में चलते हैं. मीन्स एक साइकिल में कुछ इवेंट्स होते हैं, फिर वो साइकिल फिनिश होने के बाद दोबारा वो साइकिल स्टार्ट होती है. ओके, then these events of this sexual events in the female primates is known as menstrual cycle, which includes the release of menses or release of blood along with dead cells, tissues of the endometrium of the uterus. ओवुलेशन के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन का होना, हार्मोन्स का अप एंड डाउन होना, ये तीनों चीज़ हम लोग को रिलेट करके फीमेल प्राइमेट्स में पढ़ते हैं. तो इसके पहले वाले इस चैप्टर में हमने टॉपिक में हमने oogenesis पढ़ा, जिसमें केवल फोकस किया कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द ओवरी में क्या हो रहा है, और जब एक फीमेल किस एज पे उसके ओवम में उसके फॉलिकल्स में कैसे डेवलपमेंट आ रहे हैं. लेकिन जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है एंड सी इंटर्स इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज, like 10 to 12 years old of girl child, then she started her menstruation cycle also. This cycle includes what we have read in the ovulation cycle, in the oogenesis, the follicles development. Means इस साइकिल में वो भी इंक्लूडेड है जो कि हम लोग oogenesis में पढ़े थे कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंक्लूडेड है. उसको इंक्लूड करके ये साइकिल कंप्लीट होता है. द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल्स प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे कि फीमेल प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और नन प्राइमेट्स में ऑस्ट्रस साइकिल चलता है और ईस्ट्रस साइकिल, बोथ आर सेम. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट पुबर्टी and it is called as menarche. The term is menarche, means when the first menstruation or the first menses starts in a girl child, means she has entered into her reproductive stage.
In human females, it is a cycle of 28 to 30 days, means the same events of menstruation repeats after every 28 to 30 days. As it is described as cycle, so here we will notice that this menstruation cycle repeats after every 28 to 30 days. It means this days will be consist of several events which complete this menstruation cycle. During each cycle, one ovum is released. If one cycle is completed, means if 1 month or 28 to 30 days has been completed and one menstruation cycle has been completed, then the woman will release in that cycle only one ovum. Okay, this is your introduction of menstruation cycle. Now the next cyclic events of the menstruation cycle. आखिर मेंसुरेशन जो साइकिल चलती है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? प्लीज़ ये इवेंट जो है वो पहले स्लाइड में जो वो जेनेसिस आपने पढ़ा है वो इवेंट इसमें इंक्लूडेड है और वो उसी इवेंट का नाम है फॉलिकुलर फेज. ओके, तो उस इवेंट को जो कि जिसमें हम लोग पढ़े थे कि प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे ग्राफिन फॉलिकल्स में बदल रहा है, ये भूलना नहीं है. it makes an important cyclic events in the menstruation cycle. The events of menstrual cycle is also correlated with the hormone secretion and uterine wall endometrium changes. The cycle of the menstruation आपस में बहुत को रिलेटेड है कि हार्मोनल चेंजेस वुमेन में कैसे हो रहा है और उसके यूट्रस के इंडोमेट्रियम में चेंजेस कैसे हो रहे हैं. अगर आपने यूट्रस का स्ट्रक्चर ये ऐसा है और दिस इज द इनर मोस्ट स्ट्रक्चर, देन these what changes is going on this innermost structure of the uterus during this menstrual cycle is also a vital event during this menstrual cycle. What you have to watch the uterus also, what is going inside the uterine wall, and this is called as uterus event. Menstruation includes discharge of endometrial wall along with the broken blood vessels of the uterus. हम लोग देखेंगे कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ यूट्रस के इंडोमेट्रियम में भी चेंजेज होते हैं. तो जब ये साइकिल कंप्लीट होता है तो यूट्रस जो है अपना चेंज जो की हुई रहती है साइकिल के समय, उस चेंज को फिर से प्रीवियस अपने इनिशियल पोजीशन में आती है. जैसे साइकिल के दौरान मानो वो अपने इंडोमेट्रियम के वॉल को बहुत ज़्यादा थिक करती है और उसमें सेल्स एंड ब्लड टिश्यूज़ के डिपोजिशन होते हैं. लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो नहीं होगा तो जब साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो प्रिपेयर्ड इंडोमेट्रियम जो था फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, वो प्रिपेयर्ड इंडोमेट्रियम डिस्चार्ज होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, मीन्स टूटेगा. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे घर में कोई फंक्शंस होने वाला रहता है और हमें पता रहता है कि लोग इतने आएंगे और तो किचन का सामान बढ़ा दिया जाता है, खाना उस दिन ज़्यादा बनता है, बनाया जाता है, फिर से घर की साज सज्जा भी की जाती है, चेयर्स बहुत ज़्यादा लगा दिए जाते हैं, घर में स्पेस बनाया जाता है कि इतने लोग आएंगे. ओके, मानो इवेंट वो बीत गया या वो इवेंट कैंसिल हो गया कि अब वो इवेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, हम लोग फिर से वो कुर्सियों को हटा देंगे, जितना साज सज्जा किए थे, डेकोरेट किए थे, वो सब हटा देंगे और वो हटाएंगे. वही हटाना, रिमूव करना, रिमूवल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द यूटेराइन वॉल आफ्टर
each menstruation cycle, and if fertilization is not taking place, here the guest is the, यहाँ पे गेस्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि यूट्रस ईच मंथ में फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती है कि उसको बेबी इम्प्लांट करना है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, और इफ़ द गर्ल चाइल्ड इज means she is not in the stage of fertilization, then what will happen? These decorations and extra preparation will be discharged in the form of menses. Now this cycle consists of 3 events: follicular phase or proliferatory phase. This follicular phase includes all that events that we have read in the oogenesis, that is formation of primary follicles to Graafian follicle. This includes proliferative phase or follicular phase. Then second is the luteal phase and secretory phase. Third is the menstrual phase or the bleeding phase or called menses. ये तीनों इवेंट से menstruation cycle complete होता है. Now one by one we will read the phases. Follicular phase. Here we are considering follicular phase. What is going on inside the ovary? Ovary के अंदर क्या हो रहा है? This stage starts with the increase in the level of anterior pituitary hormones. In the same way as in the male, it was the anterior pituitary hormones were released on the order of gonadotropin releasing factor, releasing hormone by the hypothalamus. उसी तरह फीमेल में भी GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को सिक्रीट कराने का ऑर्डर देता है, एंड इट सिक्रीट्स LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मीन्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. There is a follicular development along with regeneration of endometrium. We are starting from the follicular phase, means फॉलिकुलर ओवरी में बन रहा है, और उसी के साथ साथ यूट्रस में देखिए क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होगा. ये फॉलिकुलर फेज जो है कितने दिन का रहता है? 12 to 14 डेज. मीन्स जो प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स से लेकर ग्राफियन फॉलिकल तक बनने में 12 से 14 दिन तक लगता है. ओके, दिस इज कॉल्ड follicular phase time. Insurge of LH causes ovulation. Insurge of LH causes ovulation. Means हम इसके बाद हार्मोनल ग्राफ भी देखेंगे. इस फॉलिकुलर फेज के समय टाइम LH एंड FSH इंक्रीज करता रहता है. ओके, और एक वक्त आता है 12 से 14 दिन के बाद जब LH एंड FSH बोथ पीक पे रहता है, और उस वक्त इंसर्ज ऑफ LH मीन्स LH का बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना काउजेज ओवुलेशन. और वो ओवुलेशन किस स्टेज में है? ड्यूरिंग ग्राफियन फॉलिकल्स एंड द सेकेंडरी oocyte inside Graafian follicle. The developing follicles also release estrogen hormone, that is male sexual hormone, main male sexual hormone, estrogen hormone. This hormone is present all time in the female, because like androgen hormone, it is the counterpart of the androgen hormone in the female. Estrogen in the female and androgen in the male. It is present in every female, whether she is pregnant or not, if she is in reproductive stage. During this, primary follicles grows into ovary to become mature Graafian follicles. Events in the uterus, वो इवेंट तो ओवरी में हो रहा था. अब उसी दौरान फॉलिकुलर स्टेज के समय ही यूट्रस में क्या हो रहा है? यूट्रस इंडोमेट्रियम स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय थिकनिंग इट्स लेयर. जो यूट्रस है
वो अपने वॉल इंडोमेट्रियम का वॉल, मानो ये इनर लेयर है, ये इनर लेयर है, तो ये अपने इनर लेयर को थिक करना स्टार्ट कर देगा लाइक दिस। और ये ओवरी में चल रहा था साइकिल, ओवरी में ये सब साइकिल चल रहे थे। देन ओवुलेशन होगा एंड उसी ओवरी साइकिल जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा था तो यूट्रस में इंडोमेट्रियम की ऐसे थिकनिंग हो रही थी। ओके, तो दैट वाज द इवेंट इन द ओवरी एंड दिस इज द इवेंट इन द यूट्रस। तुमको दोनों ऑर्गन एक साथ देखना है। देन व्हाट इज द हार्मोनल ग्राफ ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर डेवलपमेंट? आपके एनसीईआरटी बुक में एक बड़ी सी जो ग्राफ दी हुई है 10.9 और समथिंग, उसमें आपको तीनों स्टेज दिया गया है। हॉर्मोन्स का एक अलग पैरा बनाया गया है, देन यूट्रस वॉल का बनाया गया है। सबसे नीचे में यूट्रस वॉल दिखा रहा है, कैसे वो थिकनिंग हो रही है, उसको भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, बताती हूँ। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल टीच द ग्राफ ऑफ द एनसीईआरटी। देन दिस इज द हार्मोनल ग्राफ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एफएसएच क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एस्ट्रोजन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन बनते हैं और फॉलिकल्स जो हैं धीरे धीरे डेवलप होता है और एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है। अच्छा, प्रोजेस्ट्रॉन क्या हो रहा है? इस प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो डाउन है, ओके, क्योंकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है और फॉलिकुलर डेवलपमेंट तभी होगा जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डाउन होगा। इसका लेवल अप कब होगा वो भी हम लोग आगे के इस साइकिल में ही देखेंगे। दिस इज द हार्मोनल ग्राफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑल्सो। रिमेंबर दिस ग्राफ, विच हार्मोन इज इंक्रीजिंग, विच इज डिक्रीजिंग. It is simplified form of the graph that is given in the NCERT book. You can correlate it with that graph that is given in NCERT book like this. Hormonal LH and FSH. Okay. Now second phase is luteal phase. When ovulation takes place, follicles का development हो गया, ग्राफियन follicle बन गए। उसके बाद उसमें सेकेंडरी oocyte हो गई, उसमें जोना पेलुसिडा का लेयर आ गया, तो वो अब मैच्योर हो गई। उसके बाद इंसर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स विल काउज ओवुलेशन, मीन्स रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। दिस कॉर्पस एंड द लेफ्ट आउट स्ट्रक्चर, जब वो ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी तो बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लूटियम में। इट इज़ येलो बॉडी कॉर्पस लूटियम। दिस कॉर्पस लूटियम स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्ट्रॉन। हेयर यू कम टू नो दिस हार्मोन दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन विच मेंटेन द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस का इंडोमेट्रियम फॉलिकुलर फेज में रेडी हो रहा था इम्प्लांटेशन के लिए, वो कॉर्पस लूटियम के बनने के बाद अपने आप को मेंटेन किए रहता है, मीन्स वेट करता है। सजावट फॉलिकुलर फेज के दौरान होती है और इस समय वो मीन्स डेकोरेट होके अपने आप को रेडी करके वेट करता रहता है। और इस वेट को करने में कौन हेल्प करता है? दिस हार्मोन विच इज़ रिलीज्ड बाय कॉर्पस लूटियम। ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है और भी ऑर्गन्स के द्वारा रिलीज होंगे, जैसे प्लासेंटा भी करता है, जो कि हम लोग फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। दिस प्रोजेस्ट्रॉन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी हार्मोन। ओके, दिस कॉर्पस लूटियम स्टेज फॉर 8 to 10 days and after that it destroys, which causes the progesterone level to come down. और जैसे ही ये प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डाउन होगा तो कोरिलेट करिए, जब प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डाउन होता है तो FH एंड LSH का अमाउंट, LH एंड FSH का अमाउंट बढ़ने लगता है और वो फिर से तुम्हारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाना
स्टार्ट कर देगा इनसाइड द ओवरी। इसके समय हार्मोनल ग्राफ क्या है? LH इंसर्ट्स काउज ओवुलेशन एंड देन LH डिक्रीजेज, FSH डिक्रीज कर रहा है, एस्ट्रोजन डिक्रीज कर रहा है एंड प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। प्रोजेस्ट्रॉन क्योंकि ल्यूटियल कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, इसलिए प्रोजेस्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और ये तीनों हार्मोन घटना स्टार्ट कर देंगे। इट विल डिक्रीज and progesterone will increase, that will help to maintain the endometrium wall of the uterus. Okay, now the third phase is menstrual phase. जब ओवुलेशन हो गया, कॉर्पस लूटियम 8 से 10 दिन तक वेट कर ली, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बढ़ गया, इंडोमेट्रियम बनकर तैयार होकर वेट भी कर लिया और इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन द डिक्रीज in the progesterone causes increase in LH and FSH hormone. These all cycles will be completed when there will be no pregnancy. अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये फिर से फॉलिकुलर फेज नहीं होगा, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एब्सेंट हो जाता है, दैट इज़ अनदर केस। लेकिन हम अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, इट इज़ द केस व्हेन नो प्रेगनेंसी इज गोइंग टू बी टेक प्लेस। ओके, it also causes the breakdown of endometrium prepared during the follicular and luteal phases. It leads to menstruation. It lasts for 5 to 7 days. और जब ये menstruation चलता रहता है 5 to 7 days, then also follicular phase ओवरी में स्टार्ट हो गए रहते हैं। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट फिर से होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया रहता है। द फॉलिकुलर फेज अगेंस्ट बिगिन्स कंप्लीटिंग द साइकिल, और फिर से फॉलिकुलर फेज बिगिन हो जाता है, शुरुआत हो जाती है उसकी, कंप्लीटिंग द साइकिल। इसके दौरान हार्मोनल ग्राफ क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, FSH इंक्रीज कर रहा है, एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा एंड प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि कॉर्पस लूटियम डिस्ट्रॉय हो चुका है और कॉर्पस लूटियम ही प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन डाउन होता चला जाएगा और LH एंड FSH इंक्रीज होते जाएंगे, एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा और फिर से इनका इंसर्ज होगा, दोनों LH एंड FSH पीक पर जाएंगे और इंसर्ज ऑफ LH विल काउज अगेन द सेकेंड ओवुलेशन इन द सेकेंड मंथ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड, ओनली वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। Absence of menstruation may be indicative of pregnancy. Maybe here it is written because it may be a symptom of any disease or any problems also in the female. So it may be indicative of pregnancy. No ovum is released or menstruation cycle stops during pregnancy. This cycle takes place during the reproductive stage of the female, means 10 to 50 years of the age. Female is not reproductive while its all life span. एक फीमेल अपने पूरे लाइफ स्पैन में रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं रहती है and it stops ovulation after certain age, that is 45 to 50 years of age, and this is called as menopause. The starting was menarche and the stopping is menopause. Here this is the graph, you can correlate this, and I will teach this graph in the next slide also. But remember here you have to correlate the menstruation cycle with 3 happenings. What is taking place in the hormones, what is going inside the ovary, and how the uterus wall is going to be changed. I will make you understand in the next slide also this changes. On this question, on this topic, case based question generally comes, explain the cycle also comes, when ovulation takes place, and one thing more, that after ovulation
दिस ओवम वेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर 2 to 4 days. 2 to 4 days this ovum waits for fertilization. This is high fertility period of the female when the ovum is waiting in the fallopian tube for fertilization. Okay, this is all about the menstruation cycle. Read it again and again and correlate with 2 or 3 happenings at the same time. 2 और 3 घटनाएं एक साथ चलती हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में. हार्मोन्स का चेंज, यूटेराइन वॉल्स के चेंजेस जिसको यूटेराइन इवेंट्स कहते हैं, ओवरी के चेंजेस जिसमें ओवेरियन इवेंट्स कहते हैं, और तीनों को कोरिलेट करके इस साइकिल को बार बार पढ़िए और समझिए एंड आस्क मी द डाउट्स. ओके, थैंक यू.